इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे। 25 लाख वी हैव क्रिस्टल क्लियर प्रूफ दैट दे आर फेक। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये हंगामा तो एसआईआर को लेकर के लगातार चल रहा है, एसआईआर को लेकर के रुकेगा नहीं। हम लोग अभी संसद में लड़ रहे हैं, फिर सड़क के ऊपर बिल तो आज बाय सेइंग दैट द बिगेस्ट एंटी नेशनल एक्ट यू कैन डू इज वोट चोरी। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। ये जो लोकतंत्र है ये आपका है, ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। ಯಾರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. Viewers, Prime Minister Narendra Modi had repeatedly said in Parliament that Rahul Gandhi misleads the people of India with his baseless and reckless allegations. You would remember how PM Modi had said that Congress has become a parasite, parjeevi is the word that PM used, that survives only by clinging to its allies and ends up hurting them. Today those words ring louder than ever before, and the reason I am saying it is because if you sample the sharp contrast unfolding before us, 23, yes, that is the number, 23 opposition parties have rushed to the Chief Justice of India. They have petitioned against the SIR and against Election Commission. They are painting SIR as some kind of dangerous threat to democracy, trying to create fear, confusion among the people. This has precisely been Rahul Gandhi's narrative. But viewers, Rahul's own Chief Minister has exposed the opposition's narrative and Rahul's own. DK Shivkumar has fully endorsed the SIR exercise. The Karnataka Chief Minister has publicly asked every citizen to participate actively and without any hesitation. He has made it clear that this voter list revision is essential to clean up voter lists, remove fake entries, and strengthen the foundation of democracy. This is the very same SIR process that Rahul Gandhi has been relentlessly attacking for months now. He has called it vote chori, he has branded it an anti-national act like you just heard. Rahul Gandhi has gone around the country spreading panic, claiming that millions of genuine voters will be wiped out or were wiped out, and that this is some conspiracy to steal elections. Viewers, his words have created fear, doubt, and division. But Rahul Gandhi's own leader now has rejected every single word of that narrative. This totally nails Rahul Gandhi's fakery and, dare I say, hypocrisy. His anti-SIR campaign lies in tatters, shattered not by the BJP, no, but by his own Congress government and his own Chief Minister. And you would remember, this is not the first time Rahul Gandhi has been exposed by his own colleagues. Remember how Telangana Chief Minister, just a few days ago, Revanth Reddy openly defied Rahul's stand on Donald Trump by naming a road after the American president? Once again, a Congress Chief Minister has stepped up and called out the double speak. Viewers, the message is clear for people to see. While Rahul's loyalists project him as the next Prime Minister, Jan Nayak, and, whatever they say, the Congress party itself, it seems, is fighting against Rahul Gandhi. His own senior leaders and chief ministers are rejecting his fear-mongering and exposing his blatant double standards. Now, you could call this the reality of Rahul Gandhi's leadership, I don't know, or something else. அந்த அரசு மத்திய அரசுல இருக்கிற மோடி அரசு வீட்டுக்கு அனுப்பணும்னா தான் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது வரும். இந்த செய்தியை நம்ம சொல்லணும், இந்த narrative நம்ம கீழ பில்ட் பண்ணணும். நம்மை பொறுத்த மட்டும் இந்த சண்டை 2029க்கான சண்டை ரெண்டு தான்.
ஒரு பக்கம் மோடி ஒரு பக்கம் ராகுல் காந்தி எந்த பக்கத்துல இருக்க அதுதான் கேள்வி எங்களோட இருக்கியா இல்லங்கறதெல்லாம் வேற காரணம் தான் ராகுல் காந்தியோட இருக்கியா மோடியோட இருக்கியா இதுதான் கேள்வி யார் தமிழ்நாட்டுல எங்கிட்டு இருக்கீங்கற முடிவு பண்ணிக்க அண்ணன் எச் ராஜாவோட சேர்ந்து மோடியை சப்போர்ட் பண்றியா பழனிசாமி என்ன மாதிரி பண்ணு மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்கல உனக்கு அப்புறம் எங்க The new Tamil Nadu Congress chief Manikam Tagore projecting Rahul Gandhi as the Prime Minister come 2029. Let's open this up. Shehzad Poonawala, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Vivek Srivastava, Tehseen Poonawala, Ravi Srivastava ji, IP Singh, national spokesperson of the Samajwadi Party, Kishore Tiwari ji will be with us shortly, and Dr. Anand Ranganathan completes the panel. Tehseen, Rahul Gandhi left nothing to imagination in his anti-SIR narrative. He went on to say that this is vote chori and it is the most anti-national thing to do. What is DK Shivkumar up to? Why is DK Shivkumar endorsing SIR and exposing Rahul Gandhi? Why? Thank you, Pranesh, for having me on the show. The most honorable leader of opposition, who many of us call Jan Nayak, was absolutely right. Vote chori is the worst thing to happen to our democracy. And I'm sure everyone of you viewers, whichever side it is, will agree you cannot do vote chori. So he's right today. Second, the SIR is what the Election Commission is doing. You can't escape it. So what we have to do and what the honorable Chief Minister of Karnataka, my friend DK, has done is something very good. What he's done is he's securing the citizens so that they're not left out like in West Bengal or Bihar, where they were left out. For example, in West Bengal, I just want your viewers to hear, about 27 lakh of my fellow citizens were left out. The Supreme Court left us hanging, and Mamta ji lost by about 26 lakh odd votes. Mamta lost because of SIR. 1 minute. Rahul Gandhi wanted Mamta to lose. Rahul campaigned against Mamta. Tehseen, and 1 minute, I have a problem with your, set of friends. You said Revant Reddy is your friend. He exposed Rahul Gandhi. Now you are saying DK Shivkumar is your friend. He is exposing Rahul Gandhi. And by the way, Tehseen, who was conducting SIR in West Bengal and who is going to be conducting SIR in Karnataka? Both of those questions. The Election Commission, the way it was conducted in West Bengal without thereby leaving out 27 lakh people. Who was conducting SIR in West Bengal and who is going to conduct SIR in Karnataka? Simple question. If you please allow me, it's not a simple question. Your viewers will get some knowledge and it's a good for our viewers are knowledgeable. Don't worry, Tehseen. I share enough information. And plus, they do their own research and reading. Me to answer my way. Your viewers get it because I'm not going to fall for the trick question. Please allow me. What is the trick here? 1 minute. What is the trick here? That is at the heart of this debate. Who is conducting SIR in Karnataka? Who conducted SIR in West Bengal? Tehseen, what is the trick here? Answer it. If you do not interrupt me and allow me a flow like the BJP would be allowed, I will finish it. I would have finished. The BJP hasn't spoken. I know, so I will finish it. The Election Commission is conducting it both in West Bengal and Karnataka. However, the way the Election Commission conducted it in West Bengal, leaving out 27 lakh people, was a terrible thing to do. And irrespective of who they were voted for, is not what our democracy stands for. Now, here's another 1 minute. 1 minute. Here's another trick question, if you want to call it that. I got the answer to the first question. Here's trick question number 2, Tehseen. 1 minute. Rahul Gandhi said that SIR is equal to vote chori is equal to anti-national act. Why is DK Shivkumar being an anti-national according to Rahul's definition? We cannot avoid it in any case, though we understand the games that are going to be played. Hence, DK Shivkumar has made sure that nobody is left out, and that's the genius of his administration. Genius of DK Shivkumar. 1 minute. So Rahul Gandhi is not a genius, DK Shivkumar is. The viewers have their answer. Vivek Srivastava ji, इसका जवाब दीजिए सर. राहुल गांधी कहते हैं एंटी नेशनल एक्ट है. कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, सब लोग आगे बढ़िए, सपोर्ट कीजिए. नहीं, देखिए सब लोग साथ में हैं. ओनली यू आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट Tehseen is trying to say. He is simply saying that yes, intentions. For example, I am a good maths teacher. So if I teach the students will benefit. If you start teaching maths, the same subject, बच्चे फेल हो जाएंगे. तो गलती सब्जेक्ट की नहीं है. मैथ्स में तो आपका जबरदस्त रिकॉर्ड है. ये इंटेंट नहीं, कैपेसिटी की बात हुई. तो मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको. अब उसी तरीके से साहब SIR 2 राज्यों में चल रहा है. DK शिवकुमार एक्टिव आदमी है, कह रहे हैं साहब देखेंगे, गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा इलेक्शन कमीशन, हम पकड़ेंगे इनको. भाई इंटेंशन तो है ही खराब इलेक्शन कमीशन की और केंद्र सरकार का. देयर इज एब्सोल्युटली नो टू थॉट्स अबाउट इट. वी नो द इंटेंशन इज बैड. वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द लॉसेस पॉसिबल.
That is what it is. What is that the no, mean, do not minimize, just stop the process. If Rahul Gandhi, your supreme leader, the Jan Nayak of the opposition, is saying that SIR is an anti-national act, why are you even risking it in Karnataka? Why is the chief minister not on the same page? Yeah, because legally it is not possible. So Rahul Gandhi therefore is misleading. You are conceding that it is not possible to stop it. Rahul Gandhi has been misleading. Vivek Srivastava, very good. Thank you for saying that. Tehseen could not do it. आपने complete कर दिया. Shehzad Poonawala. First of all, in this country, Mr. Vivek and Mr. Tehseen, SIR has become bahana, अपने आप को बचाना तो election commission पर निशाना. Now look at it. Tehseen Poonawala said Maharashtra we lost because of the gadbadi of EC, not a single evidence provided. Haryana we lost, Bihar we lost. But in Jharkhand, in Tamil Nadu, in Kerala and in Jammu Kashmir, there was no problem in anything. No petitions were filed there, no complaints were made there. In fact, in the last 5 state elections also, 4 complaints have been received against EVMs. Now coming to the SIR. Do you know there are 2 types of SIR? Nobody on this panel, even Anand Ranganathan, who claims to be great scientist, doesn't know that claims 2 kinds. To be kya, bhai, he is. I'm telling claims you. To be kya kar rahe ho? Claim nahi, he is. The 2 types of SIR is Sanskari SIR and Durachari SIR. Kerala mein jo hua wo Sanskari SIR tha. Let me give you exhibit. In SIR process, I mean, also removed a lot many fake voters. MLA Matthew Kuzalanandan from Congress party has said that the SIR in Kerala was very good because it removed fake voters of Vivek Srivastava. But now the same SIR, when it is done in Bengal, it becomes Durachari SIR. Tehseen said 27 lakh voters were kept hanging. Arey Tehseen Poonawala, the Indian Express, aapko to Indian Express bada pasand hai. Indian Express did analysis of 20 seats where the SIR deletions were maximum. 13 of those seats were won by Mamata Banerjee. And by the way, in Bengal, Bihar, all these cases, Supreme Court monitored the SIR process. And let me quote to you what the Supreme Court has said. Constitutional validity upheld, advances free and fair elections, it has satisfied the proportionality test, it has not been done in an arbitrary or invalid. And Tehseen's best friend Yogendra Yadav ऐसा गमछा लगा कर गए थे कि the SIR is taking away our votes. When he was asked to give us 5 cases, they gave all fake cases on affidavits. I asked Tehseen and Vivek, jointly मिलकर 5 केस दे दो. Now finally, nobody takes Rahul seriously. देखिए वो तो बात सही है. Whether it's Revant Reddy renaming the road after Trump or DK Shivkumar or Madhya Pradesh Telangana Congress defeating the candidate of Meenakshi Natarajan or JMM, but one person is sitting here who doesn't take Rahul Gandhi seriously at all. Let's show and IP get his Singh name. His name is IP Singh जी. IP Singh ने आज अभी सुबह ट्वीट किया है कि ये कैसा नेता प्रतिपक्ष है, घूमने फिरने चला जाता है. और पहले तो मंदबुद्धि भी बोला था डिलीट करना पड़ा. उन्होंने वो नाम नहीं लिया नेता का. देश में कितने नेता प्रतिपक्ष है भाई? आईपी सिंह जी, आप किसके बारे में ट्वीट कर रही है? मैं तो यही पूछना चाहता हूं शहजाद पूनावाला से कि भाई ये ऑटोनॉमस बॉडी है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का फेवर क्यों आप लेते हैं? आप बताइए. इस देश में पहले भी टीएन सेशन भी, हमने तो टीएन सेशन का एक कार्यक्रम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में कराया था, लेकिन वो कार्यक्रम जब वो हट गए थे उसके बाद कराया था. छात्र संघ में हम लोग थे. इसका जवाब आप बताइए. नहीं, पहले उनसे जवाब दे. वो दौर क्या आप भूल गए? नहीं, आईपी सिंह जी, यही बीजेपी. आप हमेशा कहते हैं ना कि सवाल क्या है. सवाल तो यही है कि 23 पार्टीज ने चिट्ठी लिख दी अगेंस्ट SIR. उसमें राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में जो लाइन लिया था उसी लाइंस पे है हमारा पिटीशन. और उस तरफ कर्नाटका के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि चलिए सब बैक कीजिए SIR को. नहीं, देखिए, आप जहां भी बीजेपी जोर जबरदस्ती करती है, सबने सर हुआ, FIR हो रहा है. जिस तरह से ये विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चलाया, सबने देखा है. असम में चलाया. उसके सर, बाद अगर बीजेपी चला रही है तो कर्नाटका भी में बीजेपी चलाएगी ना. अगर EC को कंट्रोल करती है बीजेपी तो DK शिव कुमार फिर बीजेपी को इनवाइट कर रहे हैं कि यहां आके SIR कीजिए. क्या कह रहे हैं आईपी सिंह जी? आप तो देश में ही रहते हैं, आप तो विदेश यात्रा भी नहीं करते. इसका तो सही जवाब दीजिए. नहीं, सवाल यही है कि अपोजिशन DK शिव कुमार के सामने जो समस्या है
उस समस्या का तो समाधान वो करना ही चाहेंगे, क्यों नहीं उसका विरोध करेंगे। और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने सवाल नहीं उठाए, वो राहुल गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी वोट चोरी का विरोध करते हैं और डीके शिव कुमार जी राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसमें राहुल गांधी जी ही सिर्फ वोट चोरी की बात नहीं करते, जो समूचा विपक्ष है वो ये आरोप बीजेपी पर लगाता, क्योंकि आप भूल गए हैं कि बीजेपी जो पेपर चुनाव आयोग को बना के देती है वही वो दूसरे राज्यों में आईपी सिंह जी, मैं अगर आपकी बात मान भी लूं कि अगर बीजेपी चुनाव आयोग को चला रही है तो डीके शिव कुमार क्यों कह रहे हैं कि यहां एसआईआर होना चाहिए? एसआईआर कौन करवा, यूनाइटेड नेशंस तो नहीं आएगी ना, इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा एसआईआर, तो फिर बीजेपी करेगी एसआईआर। रवि श्रीवास्तव जी। Good evening, Pradesh. First of all, SIR per se is not a wrong process. It's a good one and it should have been done. But the manner it has been done in West Bengal, in Bihar and several states has created multiple doubts. And it is called a political fraud on the people of that particular state. Now what Shiv Kumar has done, it is 2 years for the election in Karnataka. And he has given ample of time. Then let there be appeals, let there be clarifications, let there be representations to the election commissioner, and things will be sorted out. So I don't find anything wrong in it. Sir, I will tell you, Rahul Gandhi has called SIR the most anti-national act. एक बार मैंने चला दिया रिएक्शन, आप फिर से चाहेंगे तो वो वापस हम चला सकते हैं। Rahul Gandhi is on record to say SIR is equal to vote chori is equal to most anti-national act. ये राहुल गांधी कह रहे हैं। Why is the Congress chief minister backing SIR? Pradesh, there is nothing wrong in it, I am saying. So say this to Rahul Gandhi, sir. I know there is nothing wrong in SIR. I have been saying from day one, ये पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। Why is, वो क्या दिखा रहे हैं आप? एसआईआर लोकतंत्र पर वार ये लेकर पार्लियामेंट में नाच रहे थे और एसआईआर का एक स्वरूप उन्होंने फाड़ दिया था। हालांकि एसआईआर का बिल नहीं होता पर फाड़ा था कुछ तो खड़गे जी ने। रवि श्रीवास्तव और विवेक श्रीवास्तव और बाकी जो भी यहाँ पे पैनल पे बैठे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बताइए कि ये एसआईआर जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया ना। बिहार में आप बोल रहे थे दलित और मुस्लिम के वोट काटे गए, एक नहीं दिखा पाए सुप्रीम कोर्ट को, वन सिंगल केस। चलो दूसरी बात, नाउ जस्ट नाउ मिस्टर आईपी सिंह सेड व्हाई वी आर आंसरिंग फॉर ईसी, ये सवाल था ना। तो ईसी के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा क्यों चाह रहे थे? ये ईसी आने वाली थी क्या पार्लियामेंट में? हम ईसी नहीं, हम संविधानिक मर्यादाओं का बचाव करते हैं और आप संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हैं। Let's bring in Dr. Ranganathan. Dr. Ranganathan, Shehzad didn't mean when he said that the person who claims to be, I take it back. Withdraw करवा दिया. So before you go after him. No, 1 second. Good evening, Pranesh, and good evening to my fellow panelists and so many brothers on the panel. Shehzad is absolutely right, even though he says he didn't mean it. I have never claimed myself to be a great scientist. I claim myself to be a scientist, but that's another matter. No, sir, you're truly great. Certainly not. Absolutely not. But coming back to the topic, तहसीन के लिए मैंने अर्ज किया है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब now as तहसीन says my very good friend DK, तहसीन जरा उनके कान में भी बता दो भाई एसआईआर का क्या है, और जाते जाते ये भी बता दो विवेक से। टुडे इफ यू परमिट मी 30 seconds, आई वांट टू बी अ क्विज मास्टर बिकॉज यू नो एज माय टर्न हैज कम लास्ट, इतना फेक न्यूज फैलाया जा चुका है कि मेरे अंदर का कीड़ा जाग चुका है और मुझे 1-2 सवाल पूछने पड़ेंगे प्रणेश विद योर परमिशन। तो पहले तो मैं विवेक जी से पूछता हूं, जो 2 विवेक हैं आज, बड़े विवेक हैं, छोटे विवेक, दोनों मेरे भाई हैं, लेकिन मैं छोटे विवेक से पूछता हूं जो कि कम सेंसिबल है बड़े विवेक से। विवेक आप ये बताइए, केरला में कम्युनिस्ट सरकार थी, अब आ गई कांग्रेस सरकार, वहां पे भी एसआईआर हुआ, 2.69 करोड़ वोटर्स एलिजिबल हुए एसआईआर के बाद। क्या एसआईआर एक्सरसाइज केरला में गलत थी, हां या ना? अगर हिम्मत है तो बता दो। हमने ठीक ठाक करवाई। अच्छा और हमने ठीक ठाक करवाई। तो सर अगर आपने करवा ली तो इलेक्शन कमीशन को बीजेपी कैसे कंट्रोल कर रही है? बंगाल में टीएमसी ने ठीक नहीं करवाया, यही कह रहे ना।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, यही एक्सपेक्टेड था। अब मैं जरा दूसरा क्विज नंबर 2 पूछ लूं अपने आईपी सिंह जी, जो कि मतलब मेरे चाहते ही नहीं है, मेरे बड़े भाई भी हैं। देखिए आईपी सिंह जी ने क्या कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को अपनी पॉकेट में क्यों रखा है, वो जमाना था टीएन शेषन, एमएस गिल का। तो मैं इनसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हट गए, तो ये क्विज है आपके लिए आईपी सिंह जी, बोथ टीएन शेषन ने और उनके बाद जो एमएस गिल आए, उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया, और वो राज्यसभा के मेंबर मिस्टर गिल बने और इलेक्शन लड़े गांधीनगर के टीएन शेषन, कौन सी पार्टी ने टिकट दिया, उसका पार्टी का नाम बता दीजिए। आईपी सिंह जी बता दीजिए सर, आप तो देखिए डॉक्टर साहब ऐसे सवाल लेके आते हैं, पार्टी का नाम तो बताइए, क्या नाम बताओ, कि उसका बता दो बताओ आप बता दीजिए। मैं आपको आज व्यूअर्स को आपका पूरा नाम बता ही दो। आज सबको लगता है आईपी सिंह, आईपी क्या है वो मैं बता दूंगा, आप पहले इसका जवाब दे दीजिए। पार्टी का नाम बताइए। बताओ। कोई नहीं, तहसीन कुछ नहीं बोलेगा, बताओ आप। बोलिए सर, आईपी सिंह जी आप बोलिए, इसमें संकोच क्या है? वैसे ही आप सीट नहीं देने वाले उनको, आप नाम तो बता दीजिए। नहीं, मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, इतनी बात कहना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट, नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे आईपी सिंह जी। इंदर प्रकाश सिंह जी, नहीं, एक मिनट, आप बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर हैं, आप नाम बता दीजिए उसके बाद, ताकि डिबेट आगे बढ़ सके। बताइए सर। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, नाम बताइए, नाम कौन सी न्यायपालिका के सारे डॉक्टर रंगनाथन, लेट्स गो अहेड। हाँ, यस। सो बेसिकली नहीं, मैं देखिए आई रिस्पेक्ट आईपी सिंह जी एंड विवेक को, वो नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी ये एक पूछ लीजिएगा अपने दर्शकों से, ये क्विज है उनके लिए। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, SIR was never in question. I do agree with my friend Tehseen that it was abomination that the logical discrepancies that were found in Bengal that were appropriate, but Supreme Court should have said that we will resolve this matter before the elections. In any case, even if you were to add all of those 27 lakhs to the Trinamool booty, you would still find that Trinamool would have won not more than 13 seats. So Tehseen, logically, rationally, while you are right, and I agreed with you, if you remember, on the Times Now panel, I agreed with you that it is abomination the Supreme Court has said that we may investigate this after the election. That was totally wrong. But even if you have to add those 27 lakhs, my dear friend, TMC would not have won the election. At least you would concede that, at least, Tehseen. Tehseen, I'll come back to you. Let me bring in Kishore Tiwari ji is on the show. Which panel is he representing? Which faction? Kishore Tiwari ji is representing United Opposition. सही बोला ना सर? शिवसेना तो रिप्रेजेंट कराओ। यूनाइटेड तो रहने नहीं दिया ना, आप लोगों ने तोड़ दिया, बीजेपी ने तोड़ दिया शिवसेना। शहजाद, मैंने पहले ही बताया, और ये मैं मिशन 2029 कांग्रेस। सर सवाल तो सुन लीजिए, आप तो मिशन पे चले गए, सवाल तो सुन लीजिए, ये तो इंट्रोडक्शन था आपका, सवाल तो सुनिए। सवाल यह है किशोर तिवारी जी, राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी जो है, SIR से वोट चोरी होती है और वोट चोरी है एंटी नेशनल एक्ट, कहते हैं ना, ये आपने सुना नहीं? कहते हैं ना? नहीं, देखो, तहसीन को मालूम है, वो पुणे से है, और तहसीन ये महाराष्ट्र में मैंने देखा इतनी वोट चोरी हुई विधानसभा के अंदर कि मुझे आज भी वो वोट देने वाला मिला नहीं जिससे कांग्रेस को और ये इसको अपने बीजेपी और महायुति को वोट दिया। और वो भी नहीं मिल रहा किशोर तिवारी जी, जिनका नाम कटा है, जिनका नाम डिलीट हुआ है, जो कोर्ट ने बोला एग्जाम्पल दे दीजिए, वो भी नहीं मिला है। वो भी अगर मिल जाए आपको तो आप पेश कर दीजिएगा कोर्ट में। मेरा सवाल यह है सर, अगर आपको लगता है SIR से वोट चोरी होती है और जो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी होती है, तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर क्यों SIR करवा रहे हैं वहां पे? एक बात मैं बताऊं, जो SIR हुआ वेस्ट बंगाल के अंदर, उसको मैं देख रहा था, क्या वोट डिलीशन, इस प्रकार से चुनाव जीतते। तहसीन कुछ भी करो,
हाँ 2029 में तो तुमको अरे जाना आप ही मेरी पड़ेगा। बात कर रहे हो तहसीन, आप शहजाद आप मिशन जो 2029 है, अरे ये मिशन के चक्कर में मोदी को पीएम बना देंगे। अरे नहीं, मैं एक बात बोलूं, बोलिए सर। जिस प्रकार से कांग्रेस के अपना ये बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस के प्रति लोगों का रुख बढ़ रहा है और रीजनल पार्टियों को जो बीजेपी खत्म कर दे रही है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना तय हो चुका है। नहीं सर, तय तो है प्रधानमंत्री, उसमें वो तो देखिए जनता डिसाइड करेगी। किशोर तिवारी जी, मैं बहुत सिंपल सवाल ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध करते हैं, हाँ तो बोलिए इस पे। अरे हम भी एसआईआर का विरोध करते हैं, चलिए ठीक है, आप भी करते हैं, विवेक श्रीवास्तव करते हैं, रवि श्रीवास्तव करते हैं, आईपी सिंह जी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कर्नाटका में जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया डीके शिव कुमार, वो सपोर्ट करते हैं एसआईआर को। तो इससे जनता को क्या समझना चाहिए? दिन में फोन नहीं उठाया उन्होंने। उनको मैं पूछना चाहता था कि आपकी कौन सी अरेंजमेंट और कौन सी एजेंसी है और आप क्या करना चाहते हैं, मैं पूछने वाला था, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के अगेंस्ट जा रहा है डिसीजन। हाँ, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ बिग चार्ज फ्रॉम योर your so-called alliance, or at least your support base, that DK Shiv Kumar is working for the BJP. Will the Congress remove DK Shiv Kumar now? Pranay, just three things I want to take this to an intellectual level. First, Anand is right. TN Session fought as a Congress candidate. He's right about that part. But what Anand has missed, and what I would like to tell you viewers, is TN Session was the BJP candidate in a presidential election against the Congress candidate K.R. Narayanan ji. Now, second, Anand, please allow me to finish because I get very little time. I'm interrupted. Second thing, sir. The SIR, Anand is again right that irrespective that the TMC would not have won. But in the 46 seats where the SI deleted more votes than the margin, all 46 of those seats were held by the TMC prior to that. I do. This is not. Tessin, you know what is intellectual about this? I don't know. 1 minute. And the example that you are giving of TN Session, Tessin, 1 minute, it only portrays BJP as the most bipartisan party. That the Congress candidate was supported by the BJP for a presidential term. But the question is, if Congress's own chief ministers, Revant Reddy first, now DK Shiv Kumar, do not take Rahul Gandhi seriously, how do you think that Rahul Gandhi, will become the prime minister? The Congress is projecting him as the prime minister. And he was not the Congress candidate. He was the BJP Shiv Sena candidate. BJP backed him. But I think there is a fact check here. Yes, Shahzad. No, 1 second, please. 1 second. This is absolutely false. Tehseen Poonawalla said BJP had fielded TN Session. BJP had supported K.R. Narayanan. Point number 1. Point number 2, if there are 40, 50, 100, 200 seats on which the TMC felt that they were defrauded, how many seats they have filed the election petition? Maharashtra mein kitni election petition? Haryana mein kitni election petition? Zero. Candidates bache nahi, wo BJP mein aa gaye, where will they file the petition? There is an old phrase, because even Anand Ranganathan has quoted Urdu couplet today. So even I will quote, Chor machaye shor. Now chor machaye shor kyun? There was one lady. She came to India in 1968, married. 1983 she became citizen. I'm not taking name of the respectable lady. But 1980 her name came in the voter list. This is vote chori. विवेक जी, ये है वोट चोरी. कैसे बन गया वो मैडम का वोट? मैं तो यही सोच रहा हूँ. नहीं, डॉक्टर रंगनाथन भी एक सप्लीमेंट्री ऐड कर रहे हैं, एक साथ जवाब दे दीजिएगा. हाँ, आज टुडे जो है, आज तहसीन का थोड़ा सा ऑफ डे है. आई डोंट माइंड इट. ही इज नॉर्मली वेरी राइट. बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट टीएन सेशन. ही वाज नॉट बीजेपी's कैंडिडेट. ही वाज शिवसेना, बैक्ड बाय शिवसेना. BJP supported the opposition, the other candidate. So today it is accepted. आज आप गलत है, कोई बात नहीं. Tessin, it's okay. If DK Shiv Kumar and Revant Reddy can, defy Rahul Gandhi, then, you can defy facts. It's okay. Vivek Srivastava ji, आप जवाब दीजिए सर. शहजाद पूनावाला साहब के हिसाब से उर्दू कपलेट है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उर्दू शायरी नहीं कर रहे हैं, वरना यहां से उठना पड़ जाता. तो बाकी जहां तक आगे बढ़े, नहीं, अब उर्दू की नॉलेज इनको नहीं है. मैं तो सिर्फ ये बता रहा था. मैं आपको सुनाता हूं एक और उर्दू कपलेट, एक अच्छा कपलेट सुनाइए, तब तो कुछ बात भी. अच्छा, मैं ये कपलेट इसने नहीं, एक मिनट, ये मुशायरा थोड़ी चल रहा है. नहीं, ये उम्र विवेक यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी, विवेक आईना साफ करता रहा. ये नहीं समझ में आएगा ना सर. चलिए, आप सवाल का तो जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी. राहुल गांधी जी को कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? उनके अपने नेता नहीं ले रहे? नहीं, आप लोग एनालिसिस ही गलत कर रहे हैं.
राहुल गांधी को इंडिया अलायंस सीरियस ले रहा है, कांग्रेस पार्टी सीरियसली लेती है। आईपी सिंह जी, उनके आप चीफ कितना मिनिस्टर भी- सीरियसली ले रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को? अरे आप मुझे मत बोलिए, आप विवेक श्रीवास्तव जी को बोलिए। नो कमेंट्स। देखिए, बोलिए विवेक श्रीवास्तव, आप ही बोलिए। वो कह दिया उन्होंने नो कमेंट्स। नहीं, नो कमेंट्स की बात ही नहीं है। देखिए, हम कर क्या सकते हैं? सरकारी तंत्र अगर भाजपा के हाथ में है, केंद्र सरकार के, और हमारी राज्य में कुछ अगर सरकारें हैं कांग्रेस की, तो करें क्या भाई? जो सिस्टम आ रहा है उसमें मिनिमाइज करो लॉसेस को, जितना हो सके अपने वोट बैंक को बचाओ, हाथ जोड़ो, अपने वोट बैंक को बचाओ। तो ऐसा ये देखिए, ये आप सच्चाई अभी निकली है। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एसआईआर कर रहे हैं ना आप, डॉक्टर रंगनाथन? नहीं, अभी और फंस गए। 5 मिनट पहले विवेक क्या कह रहे थे कि एसआईआर एक्साइज ठीक थी स्टेट में क्योंकि हमने ठीक करवाई। अभी कह रहे हैं हम कर ही क्या सकते हैं? लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन। तो भाई मैथ्स की बात कर रहे थे, मुझे तो लगता है आप मैथ्स को छोड़ो, किसी भी सब्जेक्ट में आपके 0 मार्क्स आए MARX। नहीं, बट द बिगेस्ट डिस्क्लोजर टुडे आनंद इज द कैंडिड कन्फेशन ऑफ विवेक कि हम वोट बैंक को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। ये कौन सा वोट बैंक है बताइए? मतलब घुसपैठियों का वोट बैंक, वो तो इल्लीगल्स का वोट बैंक, कम आउट, इट स्लिप्ड आउट, फ्रॉइडन स्लिप हो गया। बोल दीजिए विवेक श्रीवास्तव, मैं वो शब्द वापस लेता हूं, बोलिए। हिंदुस्तानियों का वोट बैंक, सेक्युलर हिंदुस्तानियों का वोट बैंक, तो बाकी जो वोट बाबा कर रहे हैं वो साहब कौन के है? कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, उनके वोट्स को बचाने की तो लड़ाई सर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो एसआईआर का प्रोविजन है ना, कांग्रेस ने भी तो पहले किया है ना, तो राहुल गांधी उसको एंटी नेशनल एक्ट क्यों कहते हैं? लेकिन इसलिए क्योंकि अगर भाजपा के कहने पर इलेक्शन कमीशन उसमें गड़बड़ी करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। विवेक श्रीवास्तव, चलिए, आप तहसीन कह रहे थे ट्रिक क्वेश्चन, ये मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। एसआईआर कौन सी एजेंसी करवाती है, कौन सी बॉडी करवाती है? जी, इलेक्शन कमीशन करवाती है। वेस्ट बंगाल में कौन से बॉडी ने करवाया था? इलेक्शन कमीशन ने करवाया। कर्नाटका में होगी तो कौन सी बॉडी करवाएगी? इलेक्शन कमीशन करवाएगी। इलेक्शन कमीशन कौन कंट्रोल करता है आपके हिसाब से? इस वक्त तो केंद्र सरकार के डायरेक्टिव पे नाच रहे हैं। तो अभी तो सर केंद्र सरकार तो अभी है ना 2019 तक, तो कर्नाटका में भी तो वही करवाएंगे ना? हाँ, देखिए सर, जब एसआईआर होता है, मैं आपको छोटी सी बात बोल देता हूं, अभी दिल्ली में शुरू हुआ है आजकल में, तो दिल्ली के अंदर 3 महीने तक सरकारी स्कूलों के सारे टीचर एसआईआर में लगे। एक सरकारी शिक्षक ने जाकर के पूछा, मैं एसआईआर में जाऊंगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो उसका सुपीरियर कहता है पढ़ाने की क्या जरूरत है, खाना खाने आ रहे हैं ना, खाना मिलेगा। श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं सर आप? प्लीज, व्हाई डू यू ट्रिवियलाइज दी आर्गुमेंट? पहले आपका कॉन्ट्रडिक्शन बाहर आ गया, वोट बैंक का सच बाहर आ गया, नाउ यू आर लुकिंग फॉर एन एस्केप, डॉक्टर रंगनाथन। नहीं, एक ही देखिए, बिहार में कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को नचवा रही थी बीजेपी, बंगाल में नचवा रही थी, केरला में आप में इतना कहां से, क्या कोई आइडिया दीजिए, आपने वो नाच बंद कैसे करवा दिया? कैसे किया? क्या आपने क्या किया? नहीं, वन मोर, हम खड़े थे, वन मोर पॉइंट बिफोर ही कम्स, हम खड़े थे। वन मोर ऐड एक और सर, आपने चाहने वाले बहुत हैं, एक और पॉइंट ऐड हो रहा है। दिस इज इंसल्ट टू द सुप्रीम कोर्ट in Bengal and in Bihar. The election process has been done under the watch of the Supreme Court. They went with all the facts, figures, claims, rhetoric to the Supreme Court on Bihar, and Supreme Court said too much passion, very little reason, nothing doing. It is completely constitutional. So unless Vivek is doubting the wisdom of the Supreme Court, now to attack the SIR, and 6 months ago Tehsin and Vivek would hold hands and attack EVM. अब EVM पे दाल गलनी बंद हो गई तो SIR को गाली, अब कल SIR पर दाल गलनी बंद होगी तो और किसी को गाली देंगे। देख लेना। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी डायरेक्टिव दिया था कि राम मंदिर का एक ट्रस्ट बनाया जाए, और वो ट्रस्ट जो है, अब मोदी साहब ने बोला वो आरटीआई के अंडर भी नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कुछ करता है, क्या सरकार इंप्लीमेंटेशन करती है ठीक से? सुप्रीम कोर्ट ने तो ट्रस्ट बनवाया था ना, चोरी के लिए तो नहीं कहा था। तो आपके मस्जिद का ट्रस्ट आता है आरटीआई में? मस्जिद का ट्रस्ट आरटीआई में आता है क्या? नहीं, अब आप एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन चोरी किसने करी? चलिए सर, उस पे जाएंगे, दैट्स आवर नेक्स्ट डिबेट। विवेक श्रीवास्तव, मस्जिद के ट्रस्ट को सवाल मैं उसमें मेरे पास है 1-2 सवाल, उस पे जाऊंगा, आप इसका तो जवाब दे दीजिए। आप जवाब नहीं दे पा रहे। If the election commission it is very simply this, Vivek Srivastava, if you believe the election commission is controlled by the BJP, then why is Mr. DK Shivkumar pushing for a BJP controlled EC monitored SIR in Karnataka? Why? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो एसआईआर को हम तो सर, if DK Shivkumar can understand what the Supreme Court is saying, why can't Rahul Gandhi get it? सुन तो लीजिए ना सर 10 सेकंड। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाइकआउट नहीं कर सकते, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल है।
लेकिन जब जिस तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होता है वो चोरी के रूप में होता है। तो हमारी कोशिश है मिनिमम सर लॉसेस दिस इज बियॉन्ड मी। अब तो मैं कितने कोशिश करूं सर आपसे। रवि श्रीवास्तव जी जवाब देंगे। रवि श्रीवास्तव जी, कैन यू ऐड टू व्हाट विवेक श्रीवास्तव सेड? ही एक्चुअली सेड नथिंग। तो आपको शुरू कीजिए आप। ही इज एब्सोल्युटली राइट। Who? DK Shiv Kumar. Between Rahul Gandhi and DK Shiv Kumar, who is absolutely right? Ravi Srivastava ji. Between DK Shiv Kumar and Rahul Gandhi, who is right? के नाम पे इलेक्शन कमी। अरे भैया सुन तो लो। अरे सवाल तो सुन लीजिए सर। Between Rahul Gandhi and DK Shiv Kumar, who is right? Both are right. What is wrong? Why you are trying to create a rift? अच्छा, Why? IP सिंह जी, Both are right. IP सिंह जी, आपको मैंने कहा था ये ट्वीट कर दीजिए आज राहुल गांधी के लिए। वो बोल रहे हैं यू आर ट्राइंग टू क्रिएट रिफ्ट। अभी किशोर तिवारी ने बोला। आपको कहता कौन है ये ट्वीट करने? ये जो आप करते हैं राहुल गांधी विदेश यात्रा, राहुल गांधी के बारे में जो पहले भी लिखा है, आपको ये बताता कौन है? आज ये लिख दो। अखिलेश जी, अखिलेश यादव। सुन लीजिए ना, मैं शहजाद पूनावाले से ये पूछना चाहता हूं कि 12 वर्षों में कितने घुसपैठियों को आपकी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने मिलके भारत से बाहर किया, उसका डेटा दीजिए। मैं देता हूं। और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव संपन्न हुआ है, वहां से भी दीजिए और असम से दीजिए कि कितने घुसपैठियों को आपने बाहर किया। और आपको बताऊं कि कम से कम 3 से 4 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए लखनऊ के अंदर हैं। और मेरे घर का कूड़ा जो उठाता 10 बार ट्वीट किया हूं, प्रधानमंत्री को कहा है, वो सब के सब बांग्लादेशी हैं। तो सर उनको बोलिए कूड़ा नहीं उठाए ना, तो आप उनको कूड़ा उठाने क्यों दे रहे हैं? और देख लीजिए, उनको पूछिएगा कौन से पार्टी को वोट करते हैं। देखिए अपने पार्टी का नुकसान मत कीजिए आप। पर शहजाद आंसर व्हाट ही इज सेइंग। बहुत अच्छा सुंदर सवाल है। Mamata Banerjee had thrown the kagas in 2005 that UPA and communists were allowing the crores of Ghuspaitias to come in. Ever since BJP government came, at that time the fencing started, and first of all these 1.5 crore were not allowed to enter. तो हमारा फिगर ही स्टार्ट होता है 1.5 करोड़ से। इतनों को तो आने ही नहीं दिया, पुशबैक कर दिया। अब बताता हूं मैं कि किस प्रकार से बंगाल में जमीन नहीं दी BSF को, हमने तुरंत BSF की जमीन दे दी। असम में पूरी बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी है। अब NRC इसीलिए ला रहे थे, क्यों आपने विरोध किया? और SIR जो बिहार में हुआ, 3 लाख लोगों को, संदिग्ध लोगों को नोटिस गया है, और जिनका जवाब नहीं आएगा वो सब जो माने जाएंगे कि वो घुसपैठिए। बताइए मुझे कि आपके लखनऊ में जो घुसपैठिए हैं उसके लिए आप तैयार है ना कि उनका वोट कटेगा तो आप रोएंगे नहीं? नहीं, फिर इनका गार्बेज कौन पिक करेगा? IP सिंह जी। और आप और अगर वो घुसपैठिया है तो आप उनके साथ ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? आप उनको मना कीजिए आपके घर के बाहर घूमने से। आप अलाउ क्यों करते हैं उनको? भाई नगर निगम भेजता है। नगर निगम, अब आप यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो बुलडोजर लेकर घूमते हैं, जो गोली बारूद की बात करते हैं, कट्टे की बात करते हैं, जो कहते हैं कि बस अगले चौराहे पर ऊपर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कभी दूसरी भाषा तो सर उस भगवा वस्त्र और उनके मुख से। तो एक बात बताइए IP सिंह जी, एक बात बताइए, अगर ये सब दिक्कत है तो आपको ट्वीट में ये लिखना था ना। आपने ये क्यों लिखा कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पे है और उससे हमारा नुकसान होगा? ये क्यों नहीं लिखा कि जो मेरा जो गार्बेज उठाता है वो घुसपैठिया है? आप राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े? आप तो समाजवादी पार्टी अलायंस पार्टनर है। मुझे मत भेजिए सर, आप कांग्रेस ऑफिस में भेज दीजिए, तहसीन को, विवेक श्रीवास्तव जी को भेज दीजिए। मैंने तो देख लिया जो मुझे देखना था। पोलराइजेशन करती है। पोलराइजेशन। किशोर तिवारी जी, सर बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी कहते हैं इकोनॉमी इज डेड। इकोनॉमी इज क्लियरली नॉट डेड। उनके जो अपने नेता है वो कहते हैं कि हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है। फिर वो ट्रंप को कहते हैं कि ट्रंप इज अ बुली। एक और चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, कांग्रेस स्टेट, वहां पे रोड बना देते हैं ट्रंप के नाम पे। राहुल गांधी कहते हैं SIR एंटी नेशनल एक्ट, DK शिव कुमार SIR तो सपोर्ट कर देते हैं। क्या हो रहा है सर? एक बात मैं बोलूं? आप दो बोलिए। नहीं, मैं एक बात बताता हूं। प्रणेश, तुम बहुत कुछ ज्यादा बोल रहे हो। अभी मैं एक बात बताता हूं कि DK शिव कुमार ने वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया है, ही विल कम आउट विथ हिज ऑफिशियल वर्जन। लेकिन एक बात मैं बताता हूं तुमको कि तुम्हारा जो पहला सवाल था
तो बीजेपी आईपी सिंह जी 12 साल में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, इसमें बिजी थी वो। हाँ, और मैं अब शहजाद को पूछूंगा कि ये इलेक्शन में पैसा क्या वो पूरे चंदा चोरी का ही था, क्या अडानी का था? हाँ, और तुम्हारा पहला सवाल क्या था जो मैं तुमको जवाब नहीं दे पाऊंगा, वो मुझे पहले फिर से बोल दो। सर वो छोड़ दीजिए, आपको सवाल ही याद नहीं है तो अब जवाब कहां से देंगे? वो छोड़ दीजिए, जो याद है आप उसी का जवाब दे दीजिए। और मैं आपको अडानी पे बता देता हूं, अडानी पे सुन लीजिए किशोर तिवारी जी, अडानी पे रेवंत रेड्डी और अडानी आप गूगल कीजिए, फोन तो आप चलाते हैं ना, फोन में लिखिए गूगल में रेवंत रेड्डी और अडानी, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए वो देखिए, उसके बाद फिर से बैक कीजिए और उसके बाद उसमें लिखिए अशोक गहलोत अडानी, वो देखिए, और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मुझे बताइएगा। डॉक्टर रंगनाथन, यस। नहीं देखिए, अब ये घूम फिर के पता नहीं कहां पे डिस्कशन होके अब अडानी पे आ गया। मैं फिर विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूं। मैंने इनसे पूछा, भाई हर जगह आप एसआईआर का विरोध कर रहे थे, केरला में कंडक्ट हुआ, आपने कहा बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हमने कराया। अब ये बता दो, हर जगह आप कह रहे हो अडानी करप्ट है, केरला में अडानी ने सीपीआईएम सरकार से 12,000 करोड़ का पोर्ट का वो किया था, तो तब वो करप्ट नहीं था? क्योंकि हमने उसके पैसे इन्वेस्ट करवाए, हमने उसको पैसे दिए थोड़ी ना। आप वैसे ईसीआई से आप यहाँ एसआईआर करवा रहे हैं, अडानी से इन्वेस्ट करवा रहे हैं, राहुल गांधी से पता नहीं आप क्या क्या करवा लेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, शी जिनपिंग से भी कुछ करवा लीजिए, उनको फोन कर दीजिए, बस वही बचा हुआ है। ओके, लेट्स मूव ऑन व्यूअर्स।